So hi everyone, it is next lecture of wave optics and the topic is interference and diffraction. So we already studied about interference. What is interference? When the two or more light waves having same frequency or same wavelength, same amplitude traveling in same direction and having constant phase difference. When they superimpose over each other, then there is redistribution of their energies, right? At some points there is maximum intensity, at some other points there is minimum intensity. That means at some point there is constructive interference, at some point there is destructive interference. So this is phenomena is known as, or this pattern is known as interference of light. When we take a particular one color light, we studied about the conditions that the light must be monochromatic source, there is single source through which two light waves get superimposed, right? Because if we take a white light now, then there is colored pattern, and if we take a monochromatic light, then there is one color, that particular color's light interference. In interference, there is source, single source, whose waves get divided through these two slits. There are two slits now. When this single source light come, it divide into two light waves. That is coherent. We need the coherent source, right? We have discussed in the previous classes. So when these light through these two slits get superimposed over each other at point P, after traveling this distance at point P, then interference pattern occurs there. So what is a interference pattern? This type of interference pattern. At the center there is bright fringe. Bright fringe कब बनता है? When a bright fringe is formed, when there is constructive interference, when the crust of one wave is superimposed over the crust and the trough over trough. तो constructive interference में there is maximum intensity, क्योंकि intensity क्या होती है? Add on हो जाती है. Amplitude is also add on. So maximum intensity is there at the bright fringe. Then on the upper side and lower side, yeah, we can say left or right, there alternate dark or bright fringes are formed. This one is dark, where intensity is minimum. Then again bright fringe, maximum intensity, यानी कि constructive interference, right? Then destructive, तो alternate constructive, destructive, destructive on the both sides of the center. Central में bright बनेगा, bright fringe बनेगा, constructive interference होगा, maximum intensity होगी, then alternate चलेगा, right? And we also studied about where and at which points there is constructive interference और कहाँ पे destructive interference होगा. हर एक lambda पे lambda path difference पे constructive होगा, lambda by 2 पे destructive interference होगा, right? We already studied it ना? We already studied about the path difference x d upon lambda. अगर bright fringe की बात हो रही है, constructive की बात हो रही है, तो it is equals to n lambda. n is equals to 1, 2, 3 first bright fringe find out कर रहे हैं या second find out कर रहे हैं, right? And we already studied about resultant amplitude and resultant intensity. What is the formula for resultant amplitude? क्या पढ़ा था हमने? A square resultant amplitude square is equals to A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi. I is equals to K A square, यानी कि intensity जो है वो directly proportional होती है to the amplitude square. Resultant intensity, this formula is for resultant intensity. So I1 square plus I2 square plus 2 root I1 I2 cos phi. These are things which we have studied in the yesterday's class. Then what are the conditions for constructive interference? Intensity कब maximum होगी? ये जो पूरी term थी, in this term when we'll have maximum intensity, जब ये cos phi 1 हो जाएगा, right? Minimum कब होगा? जब या तो ये 0 होगा, ठीक है? 0 नहीं, it becomes 180 degree at multiple odd multiple of pi, तो ये minimum होगा. Even multiple होगा तो it is constructive, right? So all these things we have studied. So cos 1 minimum maximum होगा for the maximum intensity. For the constructive interference, when phase difference is 0, 2 pi या 4 pi. तो जहाँ भी phase difference 0 होता है, 2 pi होता है या 4 pi होता है, there is constructive interference, there is maximum intensity, right?
So path difference, we also define constructive interference according to the path difference. The path difference between two waves is lambda. दो waves के बीच में जो path difference होता है वो lambda होता है. तो 0 हो, pi हो, 2 pi हो, 3 pi हो, यानी कि n lambda. तो if we define according to the phase difference, तो phase difference के हिसाब से कब होगा maximum intensity, कब होगी the resultant intensity becomes maximum when phase difference is even multiple of pi. In this case, phase is even multiple of pi and path difference is integral multiple of the wavelength lambda. In दो points के according there is constructive interference, resultant intensity becomes maximum. That means bright fringes are formed. And when we talk about the destructive interference, so कब होगा destructive interference, यानी कि minimum intensity कब होगी, when there will be minimum intensity, when phi is equals to pi, 3 pi, 5 pi, and phase difference between two light waves is lambda upon 2. तो lambda upon 2 हो, 3 pi upon lambda हो, 5 pi upon lambda हो, तो at this point there is destructive interference, यानी कि दो के बीच में path difference is lambda by 2. तो path difference is old multiple of lambda upon 2, या phase difference is old multiple of pi, right? So this is condition for destructive interference. What is the path difference? When the light came from it, as I told you, this is source through which light waves come. There are two small slits, paths, yeah, we can say holes. When the light through it passes, light waves form like crust, trough. Also through this slit, when these light waves superimpose over each other, after traveling through a distance, after traveling through a path, they superimpose at a point. Suppose ये superimpose हुई इस point पे जाके, after covering through some path, so there is path difference between two light waves. So what is the formula for the path difference? XD upon D. What is capital D? Capital D is a distance from the slits to the screen. And what is small d? Distance between two slits. So this is small d. अगर हम center से ले तो इस complete d को, क्योंकि ये mid point है, center है, तो t by 2 d by 2 लिख सकते हैं, right? So what is the path difference if we solve it? अगर हम इसको solve करें, वैसे this derivation of fringe width, it is not in your syllabus, but if you want to do, so this is the path S1p of first wave. तो S1p फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल में बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. इसी तरीके से S2p निकालेंगे. सो पाथ डिफरेंस मतलब दोनों वेव्स की पाथ का डिफरेंस, दैट इज S2p माइनस S1p. तो दिस होल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड द पाथ डिफरेंस. तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस? x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. पोजीशन अभी हमने की ब्राइट फ्रिंजेस की क्या पोजीशंस होंगी? इफ वी इक्वेट दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, कि हमने देखा था n लैम्डा पे होगा, राइट. और डिस्ट्रक्टिव के केस में इट्स 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2. सो n लैम्डा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस की ये कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, n लैम्डा और पाथ डिफरेंस दोनों को इक्वेट किया. इफ वी फाइंड x पाथ डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो फाइनल इक्वेशन विल बी दिस. n इज अ इंटीग्रल नंबर कि आप कौन सा फ्रिंज फाइंड आउट कर रहे हो, फर्स्ट 0 यानी कि सेंट्रल फाइंड कर रहे हो, या फिर फर्स्ट फाइंड कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, थर्ड कर रहे हो. तो अकॉर्डिंग टू दिस पुट द वैल्यू ऑफ n. कैपिटल D द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, लैम्डा द वेवलेंथ, एंड स्मॉल d distance between the slits. If we have to find the central bright fringe, तो x नॉट या x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है. x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की, n की वैल्यू अगर 0 पुट की, तो पूरा कितना आ जाएगा पाथ डिफरेंस? 0. n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 कितना आएगा? n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी तो d लैम्डा अपॉन d. 2 करेंगे तो 2d लैम्डा अपॉन d. 3 करेंगे तो 3d लैम्डा अपॉन d, राइट. तो इस तरीके से इफ इन द न्यूमेरिकल if it is asked that find the first bright fringe या second bright fringe, so we can easily find by these
formula, right? So for bright fringes, what is the formula? What is the condition? n lambda, right? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये हमने पढ़ा था, तो उसको हमने पाथ डिफरेंस से इक्वेट कर दिया एक्स डी अपॉन कैपिटल डी से, राइट? फॉर द डार्क फ्रिंजेस एक्स डी अपॉन डी जो पाथ डिफरेंस था उसको इक्वेट करेंगे किससे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, यानी कि डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस था वो लैम्डा बाई 2 था, और यहाँ पे क्या था? 2n-1, राइट? वहाँ पे क्या था? n लैम्डा था, यहाँ पे 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, दोनों को इक्वेट कर दिया. What we got? x is equals to 2n-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम टू फाइंड द फ्रिंज, कि हमें फर्स्ट फ्रिंज फाइंड करना है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज या सेकंड या थर्ड या nth. तो n की वैल्यू अप टू n तक रहेगी. इफ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज, क्योंकि सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज होता है, देन ऑल्टरनेट चलते हैं डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो व्हाट वी गॉट? n इज इक्वल्स टू 1, 1 वैल्यू पुट की तो d लैम्डा अपॉन 2d, सेकेंड पुट करेंगे तो 3 अपॉन 2 लैम्डा d अपॉन d, राइट? तो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड कर सकते हैं. इफ वी हैव टू फाइंड द फ्रिंज विड्थ, just you have to do the formula. Derivation is not in your syllabus, CBSE syllabus. So what is the formula? What is fringe width? This is central maxima, this is dark, okay? This is bright fringe, this is dark, again bright, again dark. So fringe width is the separation between two consecutive dark fringes or two consecutive bright fringes. या तो दो bright fringes के बीच का separation, या फिर दो bright के बीच का separation, और the separation between two consecutive dark fringes. So this width is known as fringe width. It is represented by beta. Beta is equals to lambda d upon d. But remember, capital D is in the numerator and small d is in the denominator. So beta is equals to lambda capital D over small d, right? So what are the conditions we already discussed about the sustain की interference बना रहे हैं उसकी क्या conditions हैं? Two sources should continuously emit source of same frequency or wavelength, must be coherent, traveling in the same direction, और जो contrast है for better contrast between maxima. Maxima is the point where intensity becomes maximum, I max, and minima means intensity become minimum, have nearly same amplitude, right? Sustain की conditions थी ये. Necessary conditions क्या है Young's double slit experiment के लिए? In interference, the source of light should be monochromatic. As I told you ना, एक कलर की लाइट होनी चाहिए. Then waves should be of the same frequency, direction same होना चाहिए, amplitude almost same होना चाहिए, slits जो होनी चाहिए should be thin होनी चाहिए, coherent sources होना चाहिए, और coherent sources जो होंगे उनकी same frequency और same wavelength, या they having constant phase difference. These are the things I told you several times during the class, right? Next we have intensity distribution curve for interference. Energy distribution या intensity distribution curve कैसी होती है? As I told you, we discuss कि center में क्या होता है? Bright fringe होता है, then alternate dark bright इस तरीके से चलते हैं. So this is central bright. हमने क्या देखा था? जो x की वैल्यू थी, पाथ डिफरेंस था, lambda d अपॉन d इज इक्वल्स टू किसके साथ इक्वेट किया था हमने? x d अपॉन lambda को पुट किया था with n lambda, right? So this is central bright, जीरो पाथ डिफरेंस आ रहा था, जीरो वैल्यू आ रही थी. फर्स्ट डार्क की कितनी आ रही थी जब हमने n की वैल्यू पुट की थी? किसमें? 2n-1 lambda अपॉन 2 में, lambda d अपॉन 2d. इसी तरीके से सेकेंड डार्क की ये आ रही थी. सिमिलरली हम ब्राइट की भी पुट कर सकते हैं कि ये ब्राइट की अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दिस इज फर्स्ट ब्राइट, ये तो सेंट्रल ब्राइट था, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट. ब्राइट में क्या हो रही है? देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन ब्राइट फ्रिंजेस, बट इन डार्क फ्रिंजेस इट इज मिनिमम इंटेंसिटी. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन इंटरफेरेंस कि सेंट्रल में
डार्क होता है बिल्कुल। जब आप पैटर्न देखोगे इंटरफेरेंस का तो बिल्कुल डार्क, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी सेंटर में, फिर इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, यहाँ पे लेस होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, बाकी साइड्स में जो होगा वो एक जैसा होगा। जितने भी डार्क होंगे उनकी सबकी सेम इंटेंसिटी होगी, जितने भी ब्राइट होंगे उनकी सेम इंटेंसिटी होगी, और वो ऑल्टरनेट चलेंगे, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। सो इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रहता है वो सेम रहता है। ये देखो एम्पलीट्यूड भी सबका सेम है, इंटेंसिटी भी सबकी सेम है, राइट। सो मैक्सिमा मिनिमा हम फाइंड कर चुके हैं कि क्या फॉर्मूला है। हम फर्स्ट मिनिमा फाइंड करें। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज। सो किस तरीके से, किस फॉर्मूले के साथ हम ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड कर सकते हैं या किस फॉर्मूले के साथ हम डार्क फ्रिंजेस फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो यंग्स डबल स्लिट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व in interference. Suppose we have two interference curves या light waves which superimpose having same amplitude A. Bright fringe के लिए क्या है? Bright fringe कब होता है? When there is constructive interference, right? When there is constructive interference. So intensity is maximum at that time. Intensity maximum कब होगी? जब दोनों एम्पलीट्यूड एड ऑन हो जाएंगे। एंड वी स्टडीड दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। सो दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? डायरेक्ट, इफ वी रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन तो आई इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, राइट। तो के ए स्क्वायर मतलब दोनों की इंटेंसिटी एड ऑन हो गई, के ए वन प्लस ए टू टू द होल स्क्वायर। अब दोनों की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सेम है तो A1 और A2 रखने की बजाय वी पुट AA। अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना? व्हेन वी डू द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आई थी? I इज इक्वल्स टू के A1 प्लस A2 टू द होल स्क्वायर। और A1 प्लस A2 दोनों सेम एम्पलीट्यूड है, इसलिए हमने 1 और 2 की बजाय AA से इनको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। व्हेन वी ओपन दिस होल स्क्वायर, व्हाट वी गॉट? अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के बाहर है ए स्क्वायर प्लस 2 AA, यानी कि ए स्क्वायर, और ए 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज 4K A स्क्वायर, दिस वी गॉट। तो 4 टाइम्स जो इनिशियल है, इनिशियल जो इंटेंसिटी या एक की जो इंटेंसिटी है उसका 4 टाइम्स होके मिलता है, और ये सबका सेम रहता है, यानी कि जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो 4 टाइम्स होगी ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी, राइट। इट इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी, या एक वेव की जो इंटेंसिटी है उसका 4 टाइम्स होके हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा। हैव सेम मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। द इंटेंसिटी ऑफ अ डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज में देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इंटेंसिटी मिनिमम होगी। मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट या इंटेंसिटी सब्ट्रैक्टेड ऑन होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो A माइनस A दैट मीन्स 0। तो हमें कुछ इंटेंसिटी नहीं मिलेगी डार्क वाले में। डार्क वाले में आप देखोगे बिल्कुल ये जो इंटेंसिटी कर्व है, इंटेंसिटी इस एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल 0 है। This is represented the distance from the center, and this curve y axis represent the intensity. तो मैक्सिमा में या फिर ब्राइट फ्रिंजेस में या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देयर इज इंटेंसिटी, कुछ ना कुछ वैल्यू है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है विच इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी। एंड इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रिंजेस में इंटेंसिटी बिल्कुल मिनिमम यानी कि 0 है, राइट। अंडरस्टैंड ना दिस पॉइंट बेटे? Here maximum में 4 of initial intensity 4 times and minimum it is 0। और जितने भी मैक्सिमा होगा या इंटेंसिटी में मैक्सिमम होगी जहाँ पे, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, उन सबकी इंटेंसिटी सेम होगी, यानी कि कर्व सबके लिए सेम रहेगी, डार्क के लिए सबके लिए 0 रहेगी। तो दिस इज इंटरफेरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, राइट। अंडरस्टूड ना? Conservation of energy in interference. Is law of conservation of energy obeyed by interference? So yes, there is no violation of the law of conservation of energy in interference
whatever energy disappear from a dark fringe and equal energy appears in bright fringe. जब दो waves मिलती हैं I नॉट इंटेंसिटी की, डार्क में वो 0 हो जाती है जबकि ब्राइट में वो 4 टाइम्स हो जाती है, यानी कि जितना लॉस हुआ है डार्क फ्रिंज में इंटेंसिटी का उतना ही वहाँ पे एड ऑन हो जाता है मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज में. तो इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देयर इज नो वायलेशन, कोई विरोध नहीं हुआ है, कोई अगेंस्ट नहीं है ये इंटरफेरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के. सो इट ओबेज. सो मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में दोनों एड ऑन हो जाते हैं यानी कि 4 टाइम्स आती है इंटेंसिटी. यहाँ पे क्या हो जाता है 0 आती है. तो पहले भी जब इंटेंसिटी है दो वेव्स की तो यहाँ पे भी 2I0 है, यहाँ पे भी 2I0 है. बस यहाँ से जो 2I0 था उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ 4I0 हो गया और यहाँ रह गया 0. बट क्या है, इनिशियल भी है सेम और आफ्टर भी सेम है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी I1 + I2 टू द होल स्क्वायर. मिनिमम में दोनों एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम अपॉन 2. तो एवरेज कितना आया हमारा, A² प्लस A1² प्लस A2². अगर इंटरफेरेंस नहीं होता है तो भी यही आता है. इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों इक्वेशन सेम है. इसका मतलब देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स इंटरफेरेंस ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. Next we have, here it is numerical. In Young's double slit experiment, the two parallel slits are made from 1 millimeter apart. इसका मतलब दोनों जो slits हैं उनके बीच में distance है 1 millimeter यानी कि 1 mm. How we represent this distance between slits? Small d. So 5 mm. So first thing we have to do to solve the numerical is to convert the physical quantities into their respective SI units. So mm is equals to 5 into 10 raised to the power minus 3 meter. Then a screen is placed 1 meter away. इसका मतलब capital D. The distance from the slits to the screen is 1 meter. What is a fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? That means lambda wavelength you have given is 500 nanometer and nano is equals to 10 raised to the power minus 9, right? That means 500 into 10 raised to the power minus 9. nano की हमने वैल्यू पुट कर दी. We have to find the fringe separation यानी कि fringe width हमें फाइंड करनी है. fringe width क्या थी, the separation between two consecutive dark fringes or two consecutive bright fringes. dark की separation ले लो, दो लगातार dark fringes की या दो लगातार bright fringes की, that is fringe width. So what is the formula? Beta is equals to lambda capital D over small d. So put the values. Lambda is equals to 500 into 10 raised to the power minus 9. D is 1 over small d is 5 into 10 raised to the power minus 3. So it is cancel out. Okay. We got 100 over here. 2 zeros left. So this is minus 7. When this goes up, here it is 10 raised to the power minus 7. When this goes up, this power, it becomes positive. यानी कि +3. तो -7 + 3 is -4. ठीक है. It's 5 mm ना. It is 1 mm. It is not 5. It is 1 mm. So it is 1 mm. So we put 1 over here. 1 mm it is. Right. So instead of 5. Instead of here 5, what we have to put 1, क्योंकि ये 1 mm है, 5 mm नहीं है, तो it is 1. So what we got here, it is 1 mm. That's why converted into millimeter to meter.
तो 1 into 10 raised to minus 3. So it is this separation between the slits. It is wavelength 500. So this is plus 2, this is minus 9. So minus 7 is there. When this power goes up, this will be added up. So what we got? 5 into 10 raised to the power minus 4. It is separation, so it will be in meter. How we convert it और how we rewrite it, और कैसे लिख सकते हो इसको? 0.5 into 10 raised to power minus 3 मीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर. तो सेपरेशन कितनी होगी? बीटा कितना होगा? 0.5 मिलीमीटर, राइट? So we put here 5, but it is 1 millimeter. ठीक है? I thought it is 5. So this is how we can find the fringe width. Next we have ratio of intensities. From here there are more chances that question will be seen in the exams. Ratio of intensities at maxima and minima in interference. Interference में we saw what is maxima, what is minima, what are the conditions for maxima and minima. Maxima means intensity becomes maximum, जो resultant intensity वो maximum हो जाती है. That means there is constructive interference, that means there is bright fringe form. और मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यानी कि डार्क फ्रिंज बनेगा. दैट मीन्स देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? सो लेट A1 and A2 बी द एम्पलीट्यूड्स एंड एम्पलीट्यूड्स हो गए A1 A2. इंटेंसिटीज इज I1 and I2 of two waves from the different sources. As we know, intensity is directly proportional to the amplitude square. We know ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब अगर हम रेशो ले रहे हैं, हम रेशो की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर इंटेंसिटीज की हम रेशो लें तो वो किसके इक्वल होंगे? क्या फॉर्मूला होगा वहाँ पे? तो I1 अपॉन I2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के. तो I1 प्लस I1 किसके इक्वल होगा? A1 स्क्वायर, और डिवाइड I2 किसके इक्वल होगा? A2 स्क्वायर. तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर. This is very important. Then amplitude maximum interference पे कितना होगा? दोनों का एड ऑन हो जाएगा. मिनिमम पे कितना होगा? दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A1 माइनस A2. तो हम इसको यूज कर सकते हैं इन दिस रेशियो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम. मैक्सिमम में क्या होगा? दोनों का एड हो जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A स्क्वायर की, राइट? तो मैक्सिमम में एड ऑन हो जाता है, इसलिए दोनों ऐड हो गए, और A स्क्वायर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A स्क्वायर. तो ये एड ऑन हो गए, उसके बाद हमने स्क्वायर कर दिया, राइट? मिनिमम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. दैट्स व्हाई वी पुट स्क्वायर ओवर हियर. कैन वी रीअरेंज दिस? कैसे लिख सकते हैं इसको? डिवाइड इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय A2. A2 से डिवाइड कर दिया, तो दिस रेशियो इज A1 अपॉन A2, बट यहाँ पे A2 ओवर A2 वो 1 आ गया. सिमिलरली यहाँ माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, बाहर दोनों के होल स्क्वायर है, राइट? तो ये जो रेशियो है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, वी पुट इट R. हमने इसको R लिख दिया है, यानी कि एम्पलीट्यूड रेशियो, राइट? तो R1 प्लस 1 और R माइनस 1 टू द होल स्क्वायर. सो दिस इज अ रेशियो. अगर हमें एम्पलीट्यूड की रेशियो दे रखी है या इंटेंसिटी की रेशियो दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब R क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द टू वेव्स, जो A1 अपॉन A2 के इक्वल है, बिकॉज इंटेंसिटी क्या है? ये है, तो हम ये जो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. मतलब इसकी जगह हम रूट A की जगह हम रूट I भी लिख सकते हैं. वी कैन पुट A एज रूट I. A1 है तो रूट I1 हो जाएगा. तो आपके पास A1 अपॉन A2 की रेशियो हो या I1 अपॉन I2 की रेशियो, यानी कि रूट होना चाहिए यहाँ पे, तो हम एम्पलीट्यूड रेशियो यानी कि R फाइंड कर सकते हैं. और R हमारे पास है, वी कैन इजीली फाइंड मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि I मैक्सिमा और I मिनिमा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट? टेक इट्स स्क्रीनशॉट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव स्टडीड? दिस आर विड्थ. जो भी विड्थ होती है ना, ठीक है, ये फर्स्ट वेव की विड्थ है और ये विड्थ ऑफ सेकेंड. अगर हमें दो लाइट वेव्स की विड्थ या फिर स्लिट विड्थ दे रखी हैं, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2, और I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, और R को क्या लिख सकते हैं?
in this, right? Take its screenshot. Right? Next we have, what is the ratio of slit widths if the amplitude of the light waves from them have a ratio of, तो रेशियो हमें गिवन है √2:1 विड्स. अभी हमने फॉर्मूला किया था, व्हाट इज द फॉर्मूला? W1/W2, जो विड्थ है स्लिट्स की, एक स्लिट की विड्थ, सेकंड की विड्थ, W/W2 इज इक्वल्स टू, वी हैव डन ना हियर, I1/I2, और I1 किसके इक्वल है? एम्पलीट्यूड के. A1/A2, right? So what we have to find? We have ratio, हमें W1 और W2 फाइंड करना है. एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम देम हैव अ रेशियो ऑफ √2:1, यानी कि इनकी रेशियो हमें गिवन है. पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, देन ये. तो हमें A1/A2 गिवन है, बट वी हैव गिवन A1/A2, यानी कि दिस इज √2 and this is 1. This we have given, right? So we have to find firstly this, तो इसका हमें रूट लेना पड़ेगा, right? Then हमें रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी, विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी. So we have to take, if we have to find W1/W2, then we have to find root of this. We have to make square of it. ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. So इट इज इक्वल्स टू, विड्थ अगर हमें फाइंड करनी है, सो A1/A2. हमारे पास A1 A2 की वैल्यू है, डायरेक्टली इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो √2/1². सो व्हाट इज द रेशियो? 2/1. सो W1/W2 की रेशियो कितनी आई हमारे पास? It's 2/1, यानी कि 2:1, right? So what is the answer? 2:1. हमें विड्थ फाइंड करनी थी, हमारे पास A1/A2 की, यानी कि एम्पलीट्यूड्स की रेशियो है. अगर हमारे पास इंटेंसिटी की रेशियो होती तो वो वही रेशियो डायरेक्टली आ जाती. अगर हमारे पास इंटेंसिटी की दे रखी होती, एम्पलीट्यूड की रेशियो फाइंड करनी होती, तो हमें क्या करना पड़ता? उनका स्क्वायर करना पड़ता, राइट? अगर एम्पलीट्यूड दे रखा है, इंटेंसिटी निकालनी होती, तो हमें उनका रूट करना होता, राइट? So these are the formulas we have to use. Next question we have, two current sources of different intensity send waves which interfere, यानी कि इंटरफेरेंस होता है दो वेव्स का. If the ratio of maxima and minima intensity in the interference pattern is this, मैक्सिमा और मिनिमा की हमें इंटेंसिटी रेशियो गिवन है 25:16, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज. ठीक है, उनकी इंटेंसिटीज की रेशियो फाइंड करनी है, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा हमें गिवन है, हमें आर फाइंड करना है. फर्स्टली आर, देन इंटेंसिटीज की रेशियो, यानी कि आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम. तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज. right? So we have given the ratio of I1 I2. पहले हमें A1 यानी कि R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से, देन वी हैव टू फाइंड I मैक्सिमम एंड I मिनिमम. तो मैक्सिमा और मिनिमा हमें फाइंड करना है. So what we have given? We have given I1/I2. So what is the value? It is 25/16. 25:16. We have to find I maximum over I minimum, right? How we find? I maximum I minimum is equals to
I1 over I2, root of I1 over I2, that is equals to, also equals to R, that right na? So how we find? We put its value, root, it becomes 25 over 16. So what is the ratio? It's 5 over, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड I1 अपॉन रूट I1 अपॉन I2, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या आएगा? R आएगा, ठीक है। R अगर हमारा आ गया तो वी कैन इजीली फाइंड I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज 5 over 4, दिस इज R, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम? R plus 1 to the whole square upon R minus 2 the whole square, right? So what is R? It's 5 by 4 plus 1 whole square upon 5 by 4 minus 1 to the whole square. If we take to the LCM, so what is the value? It's 4, 5 plus 4 whole square upon 4, 5 minus 4 to the whole square. So it is 9 over 4, and below it is 1 over 4. How we write this? 9 over 4 whole square. What we have? 9 over 4 whole square upon 1 over 4 whole square. इसको कैसे लिख सकते हो? It's 81, 9 square is 81 and 4 is 16. When it goes up, it's 16 over 1. So what is the ratio? It's 81 over 1. So what is the I maximum over I minimum ratio? It is 81 over 1. यानी कि 81 ratio 1 is the answer. Understood? What is given to us, bete? That's why I give you time to look at this. Intensity is directly proportional to the amplitude square. I1 upon I2 is equals to A1 square over A2 square, right? If we have given the ratio of intensities, I1 और I2 की अगर हमें वैल्यू दे रखी है I1 और I2 की, तो हम R कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेशियो निकालना है हमें I मैक्सिमम और I मिनिमम का। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा मेथड और क्या हो सकता था? R निकालने की बजाय I1 और I2 गिवन था, तो मैक्सिमम में क्या करते? I1 प्लस I2, रूट I1 प्लस रूट I2 कर देते, फिर I2 से डिवाइड कर देते। जिस तरीके से हमने A को डिवाइड किया, बस यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे A1 लिया है। अगर इंटेंसिटी में लोगे तो रूट I1 करके करोगे। तो सिंपली है, आप R करके भी निकाल सकते हो। तो R इज इक्वल्स टू A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू रूट I1 ओवर I2। हमें I1 और I2 की गिवन थी वैल्यू, हम रूट करके उनका R निकाल सकते हैं। अगर R हमारे पास है, मैक्सिमम में R प्लस 1 हो जाएगा और मिनिमा इंटेंसिटी में R माइनस 1, उसका होल स्क्वायर। वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी एंड मिनिमा इंटेंसिटी, राइट? So this is how we find. So इस तरीके से हमने फाइंड किया है। I1 I2 we have given it's root 25 over 16, 5 over 4 maximum add on subtracted in the minimum. So what is the ratio? 81 ratio 1. Next, this is the same question where we have to given the ratio of intensity is 16 over 9. इसी तरीके से आप कर सकते हैं, R फाइंड आउट करिए, रूट करके इनका इट्स 4 over 3 हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी में 4 over 3 प्लस 1 और नीचे माइनस 1, तो यू गॉट द रेशियो ऑफ I मैक्सिमम I मिनिमम। दिस इज फॉर योर असाइनमेंट, यू कैन डू इट। So what is the condition of interference? That we should have monochromatic light. एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो या कुछ भी लाइट हो, ठीक है। What happen if we have a white light as a source and there is interference of the white light? अगर दो white lights हैं, उनका interference होता है तो क्या होगा? As we know about the dispersion of light, कि white light है 7 colors in it, तो जब भी white light पास होगी then there is superimposition of the white light, तो इसका मतलब जो
स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बनेंगे दे आर कलर्ड फ्रिंजेस, बिकॉज वी नो कि ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ तो है नहीं, बट कंडीशन क्या थी इंटरफेरेंस की, वो कोरेंट होना चाहिए, यानी कि या तो सेम, सबकी सेम, दोनों की जो है सेम फ्रिक्वेंसी हो या सेम वेवलेंथ हो। बट जैसे ही व्हाइट लाइट स्प्लिट होगी इनटू द 7 कलर्स, ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ होगी, जिसकी वजह से जो स्क्रीन पे पैटर्न आपको नजर आएगा वो डिफरेंट नजर आएगा, राइट, कलर्ड नजर आएगा। सो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, विबग्योर की फॉर्म में होता है, विद वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस देयर ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न, हर एक कलर का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन पाथ डिफरेंस क्योंकि जीरो होता है, जो हमने सेंट्रल मैक्सिमा ड्रॉ किया तो देखा नीचे जीरो लिखा था पाथ डिफरेंस, है ना। डार्क के अंदर लैम्डा अपॉन 2 आता रहता है और ब्राइट के अंदर लैम्डा लैम्डा डिफरेंस आता रहता है, राइट। यानी कि पूरी वेव हो जाने के बाद ब्राइट बनते हैं पूरा लैम्डा में, और हाफ में क्या बनता है, डार्क बनता है मिडल में। सो सच कंपोनेंट ब्राइट फ्रिंज बनेगा ऑफ डिफरेंट कलर्स ओवरलैप एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होगा, जितने भी रेड अपना इंटरफेरेंस बनाएगा, व्हाइट ब्लैक ये वॉयलेट अपना बनाएगा, जो विबग्योर के 7 कलर्स होते हैं ये सब अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। लेकिन सेंटर में क्या होगा, क्योंकि जीरो पाथ डिफरेंस होता है तो सब कलर्स मर्ज हो जाएंगे, दे ओवरलैप एट दिस, सो वी हैव ब्राइट फ्रिंज, द सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट। दोबारा से 7 कलर्स मर्ज होके व्हाइट लाइट बनाएंगे, यानी कि सेंटर पे हमारा क्या होगा, सेंट्रल वाइट फ्रिंज होगा। नाउ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ हमने किया था, बीटा इज इक्वल्स टू इट्स लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। तो वॉयलेट कलर हैज लोएस्ट वेवलेंथ, पता है हमें, व्हेन वी राइट विबग्योर, VIBGYOR, रेड हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ whereas violet have the shortest wavelength. Because of shorter wavelength, central maxima, this is our central, this is intensity, this is zero path difference. How we draw central maxima, this is central maxima, then this is first dark, first bright fringe, then second dark, इस तरीके से था। So what we got over here, दोनों sides पे, at both the sides, यहाँ पे क्या था हमारा 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा.5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से थे। सो व्हाट वी गॉट इन द सेंटर, वी गॉट अ वाइट लाइट ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि जो 7 कलर्स थे सबका अपना इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, सबके इस तरीके से डार्क ब्राइट होंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पे मर्ज होके सेंटर में सब कलर्स देखिए वाइट लाइट, बट यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कलर्स होंगे, क्योंकि वॉयलेट की शॉर्टर वेवलेंथ है, तो जो नेक्स्ट यहाँ पे ब्राइट बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा दोनों साइड पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, दैट इज ऑफ वॉयलेट, ठीक है। वो किसका होगा, यहाँ पे वॉयलेट कलर होगा, बिकॉज वॉयलेट हैज अ शॉर्ट वेवलेंथ। और बिल्कुल लास्ट में जो होगा फारदेस्ट फ्रिंज जो होगा वो कौन से कलर का होगा, इट इज ऑफ रेड कलर। सो इफ वी हैव अ वाइट लाइट and the interference of white light is central bright fringe is of white color because all the colors merge over the center. white color होगा बिल्कुल उसके नियरर सेंटर, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसके नियरर पार्ट पे क्या होगा, वॉयलेट, बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, और कहीं दूर जाके रेड कलर ब्राइट फ्रिंजेस हमें नजर आएंगे। ब्राइट डार्क में तो इंटेंसिटी सब में जीरो हो जाएगी, बट जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं दूर हमें रेड और पास में वॉयलेट। तो जो हमें पैटर्न नजर आएगा व्हाइट लाइट के थ्रू, सेंटर में व्हाइट लाइट एंड देयर इज कलर्ड पैटर्न, राइट। इस तरीके से कलर नजर आएंगे व्हेन वी हैव व्हाइट लाइट। सो हियर वी एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हमने देखा जितने भी मैक्सिमा होते हैं दे हैव सेम इंटेंसिटी, मिनिमा में सब में जीरो होती है, एम्पलीट्यूड सबका सेम रहता है मैक्सिमा का, राइट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सोर्स, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, when it passes through a slit, obstacle, ये पूरा ऑब्स्टेकल था, इसमें छोटी सी ओपनिंग है, when light passes through this slit it bends from the corners, ये इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट थी, ये बेंड होती चली गई, ऐसे मुड़ती चली गई,
So this bending of the light ray after passing through an obstacle is known as diffraction of light. आपने देखा होगा किसी डार्क रूम में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उससे जैसे लाइट आती है तो इट स्प्रेड्स, वो इस तरीके से फैल जाती है, राइट? ये इस तरीके से बेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है उसकी शेप. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इस तरीके से कलर्ड पैटर्न्स में आपको बोल रही थी वहाँ पे, ठीक है. बट दीज पैटर्न्स, यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे भी होंगे. देयर सेंटर, इन द सेंटर देयर इज, दिस इज सेंटर, दिस इज द सेंटर. तो सेंटर में आपको मैक्सिमा नजर आ रहा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, जो ज्यादा इंटेंसिटी का होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न? इंटरफेरेंस में जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस थे, ऑल हैव सेम इंटेंसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड. बट यहाँ पे देखोगे आप, एम्पलीट्यूड बिल्कुल भी सेम नहीं है, राइट? सेंटर वाला जो है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. बट जैसे आप साइडवेज जाओगे, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी डिक्रीजेस. तो जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दे डोंट हैव सेम एम्पलीट्यूड. द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, राइट? सो दिस इज अ मेन डिफरेंस. पर पैटर्न ऐसे ही होगा, सेंटर में ब्राइट होगा, देन ऑल्टरनेट चलते रहेंगे, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, राइट? So what is diffraction? Diffraction of light is defined as a bending of light around the corner such that it spreads out and illuminates areas where a shadow is expected. In general, it is hard to separate diffraction from interference since both occur simultaneously. The silver lining which we witness in the sky is caused due to diffraction of light. When the sunlight passes through or encounters the cloud, a silver lining is seen in the sky. क्लाउड्स के आसपास आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है. वो क्यों दिखाई देती है? जस्ट ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. अब कितनी लाइट जो है वो बेंड होगी, कितनी नहीं बेंड होगी? इफ वी हैव द वेवलेंथ कंपेरेबल टू द जो इंसिडेंट लाइट की है, दिस हैव अ वेवलेंथ, राइट? लैम्डा वेवलेंथ है. इफ इट इज कंपेरेबल विद द विड्थ ऑफ द स्लिट, तो बेंडिंग ज्यादा होगी. अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, अगर लैम्डा इज मच ग्रेटर देन ए, तो लेस बेंडिंग होगी, राइट? बेंडिंग इज लेस थ्रू द कॉर्नर्स. और अगर लैम्डा जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है विद द ए, तो देयर इज लार्ज बेंडिंग. अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना? अगर ये वेवलेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द स्लिट, तो बहुत कम बेंडिंग होगी, बहुत कम ही कॉर्नर्स पे से बेंडिंग होगी. और अगर दोनों कंपेरेबल हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल बेंडिंग. So we have two types of diffraction. Fresnel's diffraction. Number one is Fresnel diffraction. इसमें क्या होता है? सोर्स और स्क्रीन बिल्कुल पास पास होते हैं, तो लाइट वेव्स कैन इजीली कन्वर्ज एट द स्क्रीन. डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर विजिबल. नेक्स्ट वी हैव फ्रेंसहोफर्स डिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट वेव्स जो है बहुत दूर होती हैं. सोर्स एंड द स्क्रीन आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो वी नीड अ कन्वर्जिंग लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज एट द स्क्रीन. कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत होती है. वी नीड अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज. सो दिस इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट. यंग्स में हमने डबल स्लिट देखा था, यहाँ पे सिंगल स्लिट है. सो सिंगल स्लिट से लाइट आई, वी नीड अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज. तो दोनों लाइट रेज को यहाँ पे कन्वर्स किया, दोनों लाइट रेज सुपर इम्पोज हुई जस्ट लाइक इन इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे ब्राइट सेंटर में क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगा, देन ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, राइट? सो दिस इज फ्रॉम अ सिंगल स्लिट. इफ वी हैव टू फाइंड, सो डिफ्रैक्शन में क्या होगा? अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्लेस्ड. जैसे यहाँ पे मैंने कलरफुल ले रखा है, मैंने आपको सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए कलरफुल ले रखा है, पर यहाँ पे आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना, जहाँ पे सिर्फ एक ही कलर के ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे. डार्क में तो इंटेंसिटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी. So a source of monochromatic light is placed at the focus of a convex lens. Parallel beam light rays आई, wave front which gets incident on the narrow rectangular slit AB, जिसकी width A थी. तो wave fronts क्या होंगी? Superimpose होंगी over each other. Then diffraction patterns are formed. तो central maxima वहाँ पे बनेगा, right? All secondary wavelets going straight across the slit AB are focused at the central point on the screen, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वी हैव. सो हाउ वी फाइंड द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस कैसे करेंगे? जो दोनों लाइट वेव्स हैं उनके पाथ का डिफरेंस. दैट मीन्स ये लाइट वेव है, ये पाथ डिफरेंस हो गया इसका,
ठीक है, वी कंसिडर इट, और ये हो गया इसका। तो हम ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल या तो ये ट्रायंगल ले या फिर ये ट्रायंगल हम कंसिडर कर सकते हैं, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, या ये वाली कंसिडर कर लो जिसमें दोनों लाइट वेव्स होंगी। इन दिस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड P इज इक्वल्स टू बी पी माइनस ए पी इज इक्वल्स टू बी एन। तो इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। पोजीशन, हाउ वी फाइंड द पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस, हमें पता है मिनिमा में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है, मैक्सिमम में इट इज लैम्डा, सो इट इज ए साइन, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अगर हमें फर्स्ट के लिए निकालना तो यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए निकालना यहाँ पे थीटा 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लैम्डा, क्योंकि मिनिमा के लिए क्या होता है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लैम्डा, यानी कि एन लैम्डा हो जाता है, राइट। तो इंटरफेरेंस में उल्टा था, तो यहाँ के अगर हमें nth मिनिमा निकालना है तो a साइन थीटा n इज इक्वल्स टू एन लेमडा, वेर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 कितना भी हो सकता है। और मैक्सिमा के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3/2 लेमडा, 5/2 लेमडा, यानी कि ऑड मल्टीपल, तो 2n+1, वहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 होता है, तो 2n+1 लेमडा अपॉन 2। दिस इज हाउ वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हमने इंटरफेरेंस की भी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखी थी। ऑल द विड्थ जो होती है या फिर जो इंटेंसिटी होती है, एम्पलीट्यूड होता है ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। डार्क में तो बिल्कुल ही जीरो होता है, पर ब्राइट में सबका सेम था, बट यहाँ पे सेम नहीं है। जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, और उसके बाद डिक्रीज होता रहता है ऑन द बोथ साइड्स। दिस इज मिनिमा, ठीक है, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लास्ट, difference, how you differentiate, it is very important question. Number 1, interference may be defined as the waves emerging from two different sources producing different wave fronts. यहाँ पे different wave fronts बनती हैं, but यहाँ पे क्या बनती है, different parts of the same wave front। जो कॉन्ट्रास्ट है मैक्सिमा और मिनिमा वहाँ का बहुत गुड होता है, यानी कि या तो बहुत ड्राई, बहुत ब्राइट में, डार्क में बिल्कुल डार्क, पर यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो पुअर होता है, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि डार्क बिल्कुल ही डार्क हो और ब्राइट बहुत ब्राइट हो। तो जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा यहाँ पे पुअर होता है डिफ्रैक्शन में, यहाँ पे वेरी गुड होता है। यहाँ पे जब विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस इज इक्वल, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं उन सबकी विड्थ या एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम होगी, बट यहाँ पे वो वेरी करती है, यहाँ पे इक्वल नहीं होती है, राइट। इन इंटरफेरेंस वी हैव टू सोर्सेस, अ फ्यू एज टू सोर्सेस, बट यहाँ पे मोर देन टू सोर्सेस हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड diffraction of light, right? Here are wave optics and you can solve number of questions in practice. So what we have in the syllabus in wave optics, we have to various types of theories related to the wave optics, like Huygens wave principle, Maxwell's equations we have done, and Huygens wave principle. We prove reflection and refraction on the basis of wave theory. Then we'll explain interference, the superposition principle, conditions for constructive and destructive interference, patterns of interference, then diffraction. So here we end wave optics.